وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ آج کے شو میں سفری پابندیوں کا حکم نامہ اور ٹرمپ انتظامیہ کی قانونی جیت، اور یمن کے سابق صدر عبداللہ صالح کی ہلاکت کے قیام امن کی کوششوں پر اثرات۔ آج کے پروگرام میں ان موضوعات کے علاوہ بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ پاکستان کی مڈل کلاس میں اضافہ، مواقع اور مسائل کیا ہیں؟ پاکستان میں پاورٹی جو ہے، غربت، وہ بہت تیزی سے گر رہی ہے۔ اسکول جس کے کلاس روم ہے کھیت کھلیان۔ We can use everything that a regular preschool uses, but out in the garden. اور بلو ویل کا توڑ، سوشل ویل۔ اور ہم نے جو ہے اسی انسان کو ہم نے پازیٹیو طرف لے کے آنا ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ٹرمپ انتظامیہ کو ملنے والی ایک اہم قانونی کامیابی سے، جس کا اثر غیر ملکی مسافروں پر ہوگا۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے 6 مسلمان اکثریتی ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی کا صدارتی حکم نامہ نافذ العمل قرار دے دیا ہے۔ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اپڈیٹس کے ساتھ۔ ندیم، کیا تفصیلات ہیں عدالت کے اس فیصلے کی؟ ثاقب، امریکی سپریم کورٹ نے سفری پابندیوں سے متعلق صدر ٹرمپ کے تیسرے حکم نامے کو نافذ العمل رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ملکوں سے مسافروں کی آمد پر مخصوص پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کے مسافروں کو ویزا حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں کسی شخص یا ادارے سے اپنا ٹھوس تعلق ثابت کرنا ہوگا۔ پیر کو سنائے جانے والے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 9 میں سے 7 ججوں نے سفری پابندی کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دیا، تاہم اعلیٰ عدالت حتمی فیصلہ اگلے سال کے اوائل میں دلائل سننے کے بعد دے گی۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں جیسے نیو یارک، میریلینڈ اور ہوائی میں ذیلی عدالتوں نے انتظامیہ کے سفری پابندیوں سے متعلق ابتدائی حکم ناموں کو مسترد کر دیا تھا۔ اس حوالے سے ذیلی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت جاری رہے گی۔ سفری پابندیوں کے صدارتی حکم نامے کب آئے اور ان میں کیا مختلف تھا، آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں۔ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد ہی 27 جنوری کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں کا پہلا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے تحت 7 مسلم اکثریتی ممالک سے مسافروں کی پابندی پر آمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پناہ گزینوں کے پروگرام کو 120 روز کے لیے معطل کر دیا گیا، جبکہ شامی پناہ گزینوں کی آمد پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ 6 مارچ کو ٹرمپ انتظامیہ نے سفری پابندیوں کا جو تبدیل شدہ حکم نامہ جاری کیا، اس میں عراق کا نام خارج کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی 6 ملکوں کے امریکی گرین کارڈز اور ویزا ہولڈرز کو سفری پابندیوں سے استثناء دے دیا گیا۔ شامی پناہ گزینوں کی آمد کو اس مرتبہ 120 روز کے لیے روک دیا گیا۔ سفری پابندیوں کا تیسرا اور موجودہ حکم نامہ 24 ستمبر کو سامنے آیا، جس میں چاڈ، شمالی کوریا اور وینزویلا کے نام بھی شامل کر دیے گئے، جبکہ پابندیوں کا سامنا کرنے والے دیگر ممالک سے مسافروں کی آمد کو امریکہ کے ساتھ ٹھوس تعلق ثابت کرنے سے مشروط کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا شروع سے موقف رہا ہے کہ امریکہ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سفری پابندیاں ضروری ہیں، مگر امریکہ میں شہریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین کا موقف ہے کہ ان حکم ناموں میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا ہے، جو کہ امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جی ثاقب۔ ندیم، تھینک یو فار دیز اپڈیٹس آن ٹریول بین۔ عرب دنیا میں 2010 میں جمہوریت کے لیے اٹھنے والی لہر نے، جسے عرب سپرنگ بھی کہا جاتا ہے، کئی دہائیوں تک حکومت کرنے والوں کا اقتدار تو ختم کر دیا، لیکن اب بھی بیشتر ملک بد امنی کا شکار ہیں۔ انہی میں شامل ہے عرب دنیا کا غریب ترین ملک یمن، جہاں 34 سال تک حکومت کرنے والے صدر علی عبداللہ صالح کو کل انہی کے حلیف حوثی باغیوں نے ہلاک کر دیا۔ صالح 1969 سے 2012 تک اقتدار میں رہے۔ 2015 سے ان کی حامی سیکیورٹی فورسز حوثی باغیوں کے ساتھ مل کر سعودی اتحاد کے خلاف جنگ لڑ رہی تھیں، لیکن 3 روز قبل جب صالح نے سعودی اتحاد کے ساتھ جنگ بندی کی حمایت کی اور حوثی باغیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو باغیوں نے بھی ان کے ساتھ اتحاد ختم کر دیا۔ صالح یمن کی ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت تھے اور عرب لیگ نے خبردار کیا ہے کہ ان کے قتل سے ملک مزید تباہی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ 2015 سے اب تک یمن کی جنگ میں تقریباً 9000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کروڑوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ صدر صالح کی ہلاکت یمن اور عرب دنیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں مشرق وسطی امور کی ماہر ڈاکٹر جلین شویٹلر۔
डॉक्टर श्वेडलर यमन की सियासत पर इनाम याफ्ता किताब फेथ इन मॉडरेशन इस्लामिस्ट पार्टीज इन जॉर्डन एंड यमन की मुसन्नफ़ा भी हैं। डॉक्टर श्वेडलर, वेलकम टू व्यू 360। Now that the former President Saleh has been killed, how do you think this is going to affect the prospects for peace in Yemen? Well, it does open a possibility for a renewed peace process in that Saleh was seen as often as an obstacle because he was never going to be someone who really wanted to share peace or share power in the country. So there's a possibility, but I think in practical terms, it's unlikely to really change the prospects for peace. There's two main reasons. The first reason is because Saudi Arabia is intent on the destruction of the Houthis, and the Houthis have quite a stronghold and support base in the north. And the second reason is the country is really fragmented. It's not a two-sided war. You have secessionists in the south, you have pockets of al-Qaeda, and others vying for power. So it would really take the Saudi Arabia and the coalition back off and be open to a federal kind of arrangement. So जहाँ तक यमन में अमन का इम्कान है तो डॉक्टर श्वेडलर ये कहती हैं कि एक तो अली अब्दुल्ला सालेह अगरचे बहुत अहम शख्सियत है, लेकिन बहरहाल वो अमन की राह में रुकावट थे क्योंकि वो खुद पावर हासिल करना चाहते थे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो अवाम हैं वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का जो कंट्रोल है वो मुख्तलिफ पावर्स के पास है, तो इसलिए भी अमन हासिल करना आसान नहीं। और फिर ये भी कि सऊदी अरब भी हूसी बागियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है। तो बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, इसलिए अमन का इम्कान जो है, जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी नई राहें उसके लिए खुलती हैं और एक विफाकी किस्म का जो निज़ाम है वो सामने आ सकता है। So you said that Saleh was often sort of like he was an impediment to the peace process. What was driving his alliance with the Houthis? Well, he has a very personal following over the years. He's really allied with whomever he thought was going to be useful to him politically. He's allied in the past not only with Saudi Arabia, but with jihadi extremists that he later then turned against. And so the fact that he's allied with a group, the Houthis, with whom he had war for 8 or 9 years, isn't surprising. He's a political animal, and he looked around and he was really pushed out of the political scene, and the Houthis were an opportunity for him to weasel his way back into power. All right. So अली अब्दुल्ला सालेह माजी में हूथियों के साथ 8-9 साल तक जंग भी लड़ चुके थे, लेकिन उनके साथ इस मरतबा जिन्होंने अलायंस बिल्ड किया था उसका मकसद भी यही था कि वो किसी ना किसी तरह अली अब्दुल्ला सालेह वापस इक़्तिदार में आने का अपने लिए रास्ता निकाल सकें, क्योंकि सालेह माजी में भी अपने मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद कायम कर चुके हैं। उन्होंने सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कायम किया और जहादियों के साथ इत्तेहाद कायम किया, और जैसे कि इस केस में हमने देखा हूसी बागियों के साथ भी उनका इत्तेहाद रहा था। मकसद यही था कि वो दोबारा किसी तरह खुद को इक़्तिदार में ला सकें। So Houthi rebels allegedly have Iran support. Now that this alliance has unraveled, what has Saudi Arab got to gain? Is it the biggest beneficiary of this or no? Saudi Arabia? Yes. I don't see that Saudi Arabia actually benefits from this. It's happy that in some ways that Saleh is gone, although over the weekend it turned to say it was willing to talk to Ali Abdullah Saleh. In reality, I think it was just trying to play different sides and weaken the Houthis as much as possible. But I don't see it as bringing the conflict closer to a resolution, which ultimately is what Saudi Arabia would like. Not just to end the conflict, but to put in place a leader that would be very pro-Saudi. And I don't think this puts Yemen any closer to that situation. So अगरचे हूती बागियों को ईरान की मुबैना हिमायत हासिल है और अली अब्दुल्ला सालेह उनके साथ मिलके चूँकि उनका अलायंस था, तो उनकी हलाकत से डॉक्टर श्वेडलर कहती हैं कि सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सऊदी अरब भी यमन में इस्तेहकाम देखना चाहता है, अमन देखना चाहता है, लेकिन अली अब्दुल्ला सालेह की हलाकत कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है। सो यमन्स करंट प्रेसिडेंट हादी एंड हिज फैमिली आर रिपोर्टेडली अंडर हाउस अरेस्ट इन सऊदी अरेबिया. How can Yemen overcome the power vacuum that it's now in? And when it comes to regional powers, what role, if any, constructive role do they have in this whole situation? Well, regional powers could play a constructive role in that they could, the Gulf states in particular, have the funds to help fund a reconstruction of Yemen. But the problem is that they're not concerned with building a strong, viable Yemen so much as a pliant, pro-Gulf agenda Yemen. So I think they could play a stronger role than they could. The second issue is that it's really a multi-party conflict, as I mentioned earlier, and the Gulf and Saudi Arabia would have to acknowledge that those
different power sources of power, bases of power, have a legitimate voice at the table. Where what it really wants is a unified Yemen with a pliant, pro-Gulf leader, rather than a Yemen that addresses multiple voices and creates Yemen for Yemenis. सो जहाँ तक यमन में पावर वैक्यूम का और को ख़त्म करने की बात है और वहाँ कोई क़यादत कायम करने की बात है, तो डॉक्टर श्वेडलर कहती हैं कि जो रीजनल जो ताकतें हैं, खलीजी ममालिक जो हैं, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तामीर नौ में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनका मकसद ये नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यमन में एक ऐसी हुकूमत आए जो खलीजी एजेंडा की हिमायत करती हो, जो अरब ममालिक की हामी हो और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाए। लेकिन ज़रूरी ये भी होगा कि जो डिफरेंट पावर्स इस वक्त यमन में काम कर रही हैं, एक दूसरे से कंट्रोल हासिल करना चाह रही हैं, उन सबको ही टेबल पे लाया जाए और उन सबको ही अपनी आवाज़ जो है वो सामने लाने का मौका दिया जाए। डॉक्टर श्वेडलर, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड द इनसाइट दैट यू गिव अस। Thank you very much for having me. और इसराइल में अमरीकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल किए जाने के सदर ट्रंप के मुमकिना फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तुर्की और सऊदी अरब ने सख्त नताइज की धमकी दी है, लेकिन इसराइल ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत ना देते हुए फैसले का खैर मकदम किया है। तो खबर की तफसीलात आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिडिल क्लास क्या तरक्की की नवीद है या फिर मजीद मसाइल की वजह, इस पर भी रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल है आगे चलकर। और क्या खेत खलियान बच्चों के क्लासरूम्स हो सकते हैं? जवाब आज के एजुकेशन सेगमेंट में। और सबसे पहले वर्ल्ड व्यू। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जेफरी फ्लिंटमैन आज से शुमाली कोरिया का 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी आला ओहदेदार का 6 सालों में शुमाली कोरिया का पहला दौरा है। जनूबी कोरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे से शुमाली कोरिया को इसके जोहरी अज़ाइम से बाज रखने में मदद मिलेगी। रूस ने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत 9 अमरीकी नशरियाती इदारों को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया है। रूस के मुताबिक इसका ये इकदाम अमरीका की जानिब से रूसी मीडिया पर पाबंदियों का जवाब है। अमरीका रूसी मीडिया पर सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर का कहना है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का इर्तिकाब खारिज इम्कान नहीं। उनका कहना था कि इलाके में कड़ी निगरानी के क़याम के बगैर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या को वापस न भेजा जाए। सीरा लियोन का पीस डायमंड नामी दुनिया का 14वां बड़ा हीरा 70 लाख के इब्तदाई अंदाजे से कम $65 लाख में फरोख्त कर दिया गया। सीरा लियोन की हुकूमत के मुताबिक नीलामी से हासिल होने वाली रकम को मुल्क में तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों के दौरान आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही मुल्क की मिडिल क्लास भी बढ़ी है। इस वक्त 38% पाकिस्तानियों का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। और इस तब्दीली से पैदा होने वाले मौक़ों और मसाइल के बारे में वाशिंगटन में माहिरीन क्या कह रहे हैं, बता रही हैं सहर माजिद। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में इजाफे से जहां मनसूबा बंदी के कई चैलेंजेस सामने आए हैं, वहीं मिडिल क्लास में इजाफे को माहिरीन खुश आइन भी करार दे रहे हैं, क्योंकि इस तबके का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है, गुर्बत, वो बहुत तेज़ी से गिर रही है और वो उसी तरह गिर रही है रफ्तार से जिस तरह के दूसरे साउथ एशियन मुल्कों में गिर रही है। तो वो जो एक टेंडेंसी होती है कि आप गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों के फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस टेंडेंसी से आप हटते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास है, उसने वोट करना है, चुनांचे आप मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस बढ़ती हुई मिडिल क्लास के लिए मुलाजमतों और कारोबार के मौक़ों की कमी पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला है। जो नौजवान कॉलेज पास करके निकल रहे हैं, उनको मुलाजमत चाहिए या कारोबार शुरू करने के मौके चाहिए, लेकिन मौके कोशिश किए बगैर पैदा नहीं होते। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें मुनज़्ज़म तौर पर मुलाजमतों में इजाफा करना है, और इस वक्त पाकिस्तान में मुलाजमतें कम और कॉलेज ग्रेजुएट्स ज़्यादा हैं। बेरोजगारी का शुमार उन अवामिल में किया जाता है जो नौजवानों को दहशतगर्दी की जानिब राग़िब करते हैं। अगरचे तालीम का इंतहा पसंदी के खात्मे में अहम किरदार समझा जाता है, चार्ल्स कैडबिल कहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों का दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होना हैरत की बात नहीं।
जैसे आप मुतवसत तबके में आते हैं, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और इनमें से एक ऑप्शन होता है इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार करने का। पाकिस्तान की अर्बन मिडिल क्लास बहुत वसी है, उन लोगों के पास पढ़ने का, रिसर्च करने का वक्त है, और ये तबका दुनिया से बाखबर है। इसलिए अगर इनमें से कुछ लोग शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हर मुआशरे में होता है। 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को जिन तरक्याती और सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, उन पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन माहिरीन की नज़र में ऐसा माहौल पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है जिससे मिडिल क्लास के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद मिले, और यही मनसूबाबंदी के एतबार से सबसे बड़ा चैलेंज भी है। सहर माजिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब कुछ बात करते हैं अफ्रीका के नौजवानों की, जहां अफ्रीका से मुख्तलिफ मुल्कों से हर रोज़ बड़ी तादाद में नौजवान लीबिया जा रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि वो वहां से बज़रिया कश्ती गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हो जाएं, लेकिन इनमें से अक्सर को लीबिया के हुक्काम गिरफ़्तार करके मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में भेज देते हैं, जहां हालात इंतहाई ख़राब हैं। और अब एक CNN की वीडियो में दिखाया गया है कि लीबिया में अफ्रीकी नौजवानों को बेचा भी जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तारिकीन वतन लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस की डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। बहरे रूम से रेस्क्यू करने के बाद इन्हें या तो वतन वापस भेजा जाएगा या भेड़ बकरियों की तरह तराबलस में बहरिया के अड्डे पर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी तस्वीर और हालिया रिपोर्ट्स ने लीबिया की हुकूमत को जवाब देने पर मजबूर किया है। हुकूमत ने एक तफ्तीशी कमेटी तश्कील देने के लिए बराह रास्त हिदायत जारी की हैं ताकि हकीकत का पता चलाया जा सके और मुजरिमों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। लीबिया से अफ्रीकी मुल्क आइवरी कोस्ट वापस आने वाले एक शख्स ने इन रिपोर्टों की तस्दीक की है कि लीबिया में लोगों को गुलामों की तरह बेचा जा रहा है। जैसे ही आप लीबिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले लोग आपको ले जाकर बेच देते हैं। मगरबी अफ्रीका में चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, वो आपको सिर्फ 700 अमरीकी डॉलर्स में बेच देते हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया है कि स्मगलरों के इस नेटवर्क को खत्म किया जाए। उन्होंने इलाकाई हुकूमतों पर भी जोर दिया है कि तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त करने में वो लीबिया की मदद करें। Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable. लीबिया में इस वक्त कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं। हम वहाँ एक देरपा सियासी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में सरगर्मी से काम कर रहे हैं, लेकिन लीबिया फिलहाल ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ्रीकी यूनियन कमीशन ने भी रुकन मुल्कों से मदद की अपील की है, लेकिन बहुत से अफ्रीकी इस सूरत हाल का जिम्मेदार अपनी हुकूमतों को ठहराते हैं। Depuis les années 60 des indépendances jusqu'à aujourd'hui, si les jeunes Africains, हमारे नौजवान मुश्किल हालात से निकलने के लिए डूब जाने तक को तैयार हैं। हमारे लीडरों को शर्म आनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक लीबिया में फंसे तकरीबन 9000 तारिकीन वतन इस साल अपने घरों को वापस जा चुके हैं, लेकिन नए लोगों की आमद का सिलसिला इसी तरह जारी है। ज़लातिसा हुक की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। हमारे हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट में आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे स्कूल में जहां नन्हे बच्चों को पूरा दिन क्लासरूम में रखने के बजाय बाहर खेतों में घूमने फिरने दिया जाता है। और वहाँ वो पौधे लगाते हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं, परिंदों के अंडे इकट्ठे करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। तो देखते हैं कि क्लासरूम के बजाय यहाँ खेत खलियानों में रहना बच्चों को तालीम देने का कैसा तरीका साबित हो रहा है। इस फार्म स्कूल में बच्चे दौड़ते भागते, चीखते चिल्लाते और मौज मस्ती करते बहुत कुछ सीखते हैं। एलिसन हफ दीगर स्कूलों में भी पढ़ा चुकी हैं। वो कहती हैं कि बच्चे यहाँ अमली तौर पर सीखते हैं। जब हम पम्पकिंस पर काम कर रहे थे तो हमने इसमें गिनती भी शामिल की। हम मुतज़ाद अल्फाज भी शामिल कर रहे हैं। वो रंगों के बारे में वजाहत कर रहे हैं। हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो एक आम प्री स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन बाहर गार्डन में। इस फार्म स्कूल में बच्चों को गैर मुल्की जुबान सीखने का भी मौका मिलता है। वो सीखते हैं कि दूध कहाँ से आता है और इससे मक्खन कैसे बनता है। ये इसलिए क्योंकि फार्म के जानवर भी निसाब का हिस्सा हैं। हमने इसे वन डे फार्म का नाम दिया है क्योंकि हम हमेशा कहते थे कि एक दिन यही हमारा मकसद और ख्वाब होगा।
अचानक हमारे दोस्त और खानदान वाले यहाँ आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ये जानना चाहते थे कि गार्डन फार्मिंग क्या होती है। हमारे पास तमाम जानवर थे, वो जानवर देखना चाहते थे, वो घुड़सवारी करना चाहते थे, अंडे इकट्ठे करना चाहते थे। इस सब की वजह से ही फार्म स्कूल का आगाज हुआ। जैकलीन और कैनी जेंकिंस की राय में इस तरह की खुली जगह जहाँ अमली तौर पर कुछ सीखा जा सके बहुत जरूरी है। ये देखते हुए कि हमारी सोसाइटी आज कहाँ पर है, बच्चे अपने आईपैड या आईफोन से चिपके रहते हैं, वो इस तरह सीखते हैं, वो अपने हाथों से मजीद कुछ नहीं सीख रहे। इसी रवैये की बुनियाद पर कोर्टनी विलियम्स ने अपनी 3 साल बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। वो गिनती सीख रहा है, वो रंगों के बारे में जान रहा है और हर वो चीज जो उसे इस तालीमी मुकाबले में आगे रखे। और फार्म स्कूल यही चाहता है कि बच्चे यही असर लें, पूरे खानदान को सिखाया जाए और बाहर के माहौल को क्लासरूम में लाया जाए। फाइजा अलमसरी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। कोयटा में एक रजाकार तंजीम ने ब्लू वेल जैसे खतरनाक और जानलेवा गेम की जगह सोशल वेल के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। तो सोशल वेल ब्लू वेल से कैसे मुख्तलिफ है, इसके यूजर्स को क्या टास्क दी जाती हैं, आइए देखते हैं। वलीद अंसारी ने कई अफराद को हलाकत के मुंह तक ले जाने वाले गेम ब्लू वेल का तोड़ सोशल वेल से निकाला है। तो उस एप्लीकेशन पे काम शुरू किया और इसका नाम हमने सोशल वेल रखा है कि यानी सोशल काम करती है एक एप्लीकेशन। तो इसमें हमारा तरीक़ाकार भी वही ब्लू वेल वाला है कि ब्लू वेल जो है इंसान को गलत काम करने पे मजबूर करती थी, उसका माइंड सेट करती थी और हमने जो है उसी इंसान को हमने पॉजिटिव तरफ लेके आना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़िया खान एक दफ़ा वलीद को सोशल वेल एप्लीकेशन बनाने का ख्याल उस वक़्त आया जब कोयटा ऑनलाइन नामी तंजीम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट के ज़रिए रज़ाकारों को ब्लू वेल का मुतबादिल तलाश करने का हदफ दिया। एक लाइव वीडियो के थ्रू मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड कराया कि भाई आपने अगर वाकई अपने आप को ब्रेव साबित करना है तो आप अपना कमरा साफ करें, अपना घर साफ करें, जाएं किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज़ की तीमारदारी करें, रोड पे लोगों को क्रॉस कराए, ब्लड दे, दरख्त लगाए, परिंदों को दाना दे। तो इस तरह के सोशल चेंज के हवाले से कोई गेम होना चाहिए। सोशल वेल गेम की मोबाइल एप्लीकेशन में 27 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। इनकी नौयत खुद को तकलीफ देने के बजाय लोगों के काम आना है। इस गेम में अपनी गली को साफ करने, गरीबों में खाना तकसीम करने, मरीजों की अयादत करने, खून अतिया करने और अपने इलाके में 5 दरख्त लगाने जैसे अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। गेम खेलने वाले के लिए हदफ पूरा करने की तस्वीर अरसाल करना अहम शराइत में शामिल है। वलीद की बीनाई कमज़ोर है, इसी वजह से वो 5वीं जमात के बाद से तालीम भी जारी नहीं रख सके, मगर घर पर ही वेब डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग का काम इंटरनेट पर ऑनलाइन सीखा। सोशल वेल एप्लीकेशन की तैयारी भी इसी मेहनत की कड़ी है। जब तक ताल्लुक़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सारी मैंने घर में सीखी, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, कोई मैंने प्राइवेट कोर्स पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया, सब कुछ मैंने फ्री यूट्यूब और गूगल से सीखा। वलीद के मुताबिक सोशल वेल एप्लीकेशन बनाने में इन्हें 8 दिन लगे। वो पुरउम्मीद है कि इस गेम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रसाई मिलेगी ताकि लोगों को ब्लू वेल के ख़तरनाक गेम से छुटकारा मिल सके। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। पॉजिटिव एंड इंटरेस्टिंग। वेल, ये था हमारा आज का व्यू 360। शो में शामिल रिपोर्ट्स पर अपनी राय देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर। एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। साकिबुल इस्लाम और सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।